Hello everyone. Today we will talk about motion and its types. Before starting, I want to tell you something about transport, the story of transport. You all know that in earlier time man has no vehicles. He used animals to move from one place to another. Later on, he discovered wheel, which was his great invention, and it changed his life almost. After this, he invented steam engine, and at this time, he is so succeed that he can fly also like a bird by his invention like an aeroplane or helicopter. There are three types of transport: air, water, and land. One thing is common in all. What is that? That is motion. They move from one place to another. They cover some distance, no matter it is short or long. Sometimes they are in motion or sometimes they are in the position of rest. Well, do you know what is motion? What is the position of rest or a stationary body? In this session, we will know about this. So let's start. Stationary body. If the position of the body remains the same with time, then this body is said to be at rest or stationary. यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, देन दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, योर होम, स्कूल एंड मैनी बिल्डिंग्स. द पोजीशन ऑफ योर होम, स्कूल एंड बिल्डिंग्स डू नॉट चेंज विद टाइम. Now, motion. If the position of a body changes with time with respect to a stationary body, then this object is said to be in motion. यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, देन दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. तो उस ऑब्जेक्ट को किसमें कहते हैं कि वो मोशन में है, वो गति कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय वॉकिंग अलोंग अ रोड. Here, the position of the boy keeps on changing with respect to trees, buildings, and many things that are fixed at a place. So now, types of motion. There are different types of motion. We start with translatory motion. Translatory motion. All the particles of a body moves through the same distance and same time. इस मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल्स सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं. इफ द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज रेक्टिलिनियर, एंड इफ द बॉडी मूव्स इन अ कर्व लाइन, इट्स मोशन इज कर्विलिनियर. फॉर एग्जाम्पल, अ मूवेबल कार और ट्रेन, मूवमेंट ऑफ एन एरोप्लेन. इफ द कार और ट्रेन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, then it is said to be those are said to be in rectilinear motion. While if the body moves on a curved line or curved track, then car or train is are said to be in curvilinear motion. Now, circular motion or rotation. In this motion, a body moves about a fixed axis without changing its position. इस मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस पर मूवमेंट करता है, जबकि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, केवल वो एक फिक्स एक्सिस के उसमें मूवमेंट करता है. देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर और रोटेशन. फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ का जब अपने एक्सिस पर मोशन करती है, मूवमेंट करती है, तो इसके मोशन को कौन सा मोशन कहते हैं? सर्कुलर मोशन और रोटेशन. बट if the body moves as a whole round in a circular path, the motion is known as revolution. लेकिन अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करता है, इट मीन्स उसके चारों तरफ मूवमेंट करता है, तो उसे वो मोशन कौन सा होता है? रिवोल्यूशन. दैट इज नॉट अ सर्कुलर मोशन, दैट इज रिवोल्यूशन. लाइक मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. इसमें अर्थ क्या करती है? अर्थ सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाती है, जिसे क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं. सो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर डिफरेंट मोशंस. इन रोटेशन द बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, while in revolution the body whole as a whole round in a circular path. Okay, now oscillatory or vibratory motion. In this motion, a body moves to and fro about its mean position.
इस मोशन में एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट किसी उसकी मेन पोजीशन के, इट मीन्स मेन पोजीशन जहाँ पे वो फिक्स रहता है, उसके इधर उधर मूवमेंट करती है, जिसे कि ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल पेंडुलम, अ स्विंग. पेंडुलम में क्या होता है, पेंडुलम एक फिक्स एक्सिस पे, यहाँ पे क्या है, ओ इसकी हमने एक पेंडुलम लिया है जो कि एक स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है. यहाँ पर ओ इसकी मेन पोजीशन है. जब हम ओ पर कोई फोर्स लगाते हैं तो ओ से ए, ओ टू ए टू बी, बी टू ओ, ये मूवमेंट करता है. एंड दिस इज नोन एज द ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. नाउ पीरियोडिक मोशन. In this motion, it is occurs again and again with a fixed interval of time. ये मोशन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होता रहता है, लाइक एज आवर हार्ट बीट, पल्स, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड ऑल्सो आवर पीरियोडिक बेल, जो कि एक फिक्स टाइम के बाद बजती रहती है, इसमें कि एक फिक्स इंटरवल होता है. वह मोशन कौन सा होता है, पीरियोडिक मोशन होता है. Now, non-periodic motion, the motion which does not occur itself again and again after a fixed interval of time. वह मोशन जिसमें कि एक फिक्स इंटरवल के बाद जो नहीं होता है, उसको कोई टाइम फिक्स ही नहीं, कभी हो जाएगा और कभी नहीं होगा, दैट इज नोन एज नॉन पीरियोडिक मोशन. लाइक एज अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, स्टॉर्म्स, दीज आर द नॉन पीरियोडिक मोशन. नाउ रैंडम मोशन, the motion which is in haphazard manners in all possible direction is known as random motion. It means वह मोशन जो किसी भी मैनर में, किसी भी टाइप से, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ फ्लाइज, जैसे फ्लाई उड़ती है, या बॉल इन अ क्रिकेट और हॉकी गेम, बॉल क्रिकेट में और हॉकी गेम में जो बॉल होती है वो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है. तो दिस इज द random motion. Simultaneous motion. There are some motion in which translatory and rotatory motion both take place simultaneously. कुछ motions ऐसे होते हैं जिनमें translatory motion. Do you know what is translatory motion? In which all the particles of a body move through the same distance in same time. Okay? Say moves एंड रोटेटरी मोशन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. वे मोशन जिनमें ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन सेम टाइम पर होते हैं, वो कौन से मोशन होते हैं, साइमल्टेनियस मोशन होते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मोशन इज द व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल और अ स्क्रू बीइंग टाइटेंड. जो साइकिल का व्हील होता है, जब हम पैडल करते हैं साइकिल को, तो साइकिल एक स्ट्रेट लाइन में भी चलती है, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन. और व्हील मूवमेंट भी करता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है. वो मोशन कौन सा होता है, रोटेशन और सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन. और एक स्क्रू को अगर हम टाइट करते हैं तो वो अंदर भी जाता है और गोल गोल भी घूमता रहता है, इन विच ट्रांसलेटरी मोशन और सर्कुलेटरी मोशन जिसमें होते रहते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मोशन. I hope you watched the video attentively. So I have a work for you. You have to fill your bookwork yourself. Okay, thank you so much.